Dear students, how are you? So hope you all are fine, and here I am also very fine, right? So today we are going to start recording number 6. Okay. So last class I taught you regarding corresponding angles, alternate angles, interior angles, exterior angles, right? So now I am going to tell you what happens when L parallel M. ठीक है बच्चों, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो जाता है तो क्या होगा? करेक्ट. सबसे पहले यू सी दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7. सो दिस अकर्स व्हेन two lines are parallel. Number 1. Number 2, alternate angles will also be equal. Angle 4 equal to angle 5 and angle 6 equal to angle 3. This is alternate interior angles, you know that. At the same time, alternate exterior angles will also be equal. Angle 2 equal to angle 3, angle 1 equal to angle 7. Okay, my dear student, so these all angles will be equal when the two lines are parallel. And next is, you know that angle 3 plus angle 5 is what? Interior angle on the same side of the transversal. So when you add these two angles, you will get 180 degree. Okay. Similarly, when you add angle 4 and angle 6, you will be getting 180 degree. Is it clear, my dear student? So you know, supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree. So in that situation, you can say that angle 3 and angle 5 are supplementary angles because the sum of these two angles becomes 180 degree. ठीक है बच्चों, तो एंगल का नाम क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. एट द सेम टाइम आप इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो बिकॉज व्हेन L इज पैरेलल टू M, द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री. नॉट ओनली दिस टू एंगल, माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों एंगल 1 और एंगल 8 को भी ऐड करेंगे, यू विल बी गेटिंग 180 डिग्री. सो यू कैन कॉल दिस ए सप्लीमेंट्री एक्सटीरियर एंगल्स एंड यू नो द सम ऑफ दिस टू एंगल इज अगेन 180 डिग्री. ओके, सो दिस होल सिचुएशन विल अकर व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल. ये सारा तब होगा जब दो लाइन पैरेलल होंगे. ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूँ. तो सबसे पहला सिचुएशन क्या होगा? नंबर 1, यू कैन से दैट when L parallel M. तो मैंने एक ऐसे एरो लगा लिया. सो फर्स्ट यू कैन से दैट corresponding angles are equal. Is it clear? So which are the corresponding angles? Angle 1 will be equal to एंगल 5. कमान बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 and angle 4 equal to angle 7. So my dear student, this will occur when the two lines are parallel. Second situation, when L parallel M, you can say that the alternate interior angles are equal. So what can you say? The alternate interior angles, my dear student, ये है angles का symbol, are equal. Is it clear? So what will you say? Angle 4 equal to angle 5, angle 6 equal to angle 3. Next क्या बोलेंगे बच्चों? When L parallel M, बताइए. Alternate exterior angles are equal. So which are alternate exterior angle? Angle 2 का equal to angle 8, angle 1 का angle 1 equal to angle 7. Is it clear? Next, fourth, when L parallel M. बच्चों क्या बोलेंगे बताइए? इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स
on the same side of transversal are equal, not equal, sorry, are सप्लीमेंट्री। तो बच्चों सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है बच्चों? सप्लीमेंट्री मतलब आप ये दोनों एंगल को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 180 डिग्री। सो व्हाट विल यू राइट? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंड हियर एंगल 4 प्लस एंगल 6 equal to 180 degree. Is it clear? So once again, interior angles on the same side of the transversal are supplementary. Next is fifth, when L parallel M. Same rule you can extend. What is that? Tell me. You can say that exterior angles on the same side of transversal are supplementary. Clear? So which are the exterior angle on the same side of the transversal? Angle 1 equal to angle not equal to plus 180 डिग्री, और बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ये सारा सिचुएशन तब होता है व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, L पैरेलल M। अब मैं उल्टा एक क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज यू गॉट दैट, ओके माय डियर स्टूडेंट, यू डू वन थिंग, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, ओके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं रब करने वाला हूँ उसको, ठीक है ना। अभी सपोज आई से दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब आप क्या बोल सकते हैं? टू लाइन्स आर पैरेलल। यानी ध्यान से सुनिए, जब लाइन्स पैरेलल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, उल्टा जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो ये लाइन पैरेलल होगा। तो आप इसको डबल एरो दे सकते हो, बिकॉज व्हेन दिस एग्जिस्ट दिस विल हैपन, व्हेन दिस एग्जिस्ट दिस विल हैपन। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ बताइए, जब ये दो लाइन पैरेलल होगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है देन टू लाइन्स आर पैरेलल। सिमिलरली हियर एवरीवेयर द कंडीशन एग्जिस्ट, इफ दिस अकर्स ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ चलिए मैं इसको भी मेट देता हूं। नेक्स्ट सपोज दिस इज लाइन, this is L, this is M, this is transversal. Okay, let us say that this angle is angle 1 and angle 1 equal to, you got 70 degree, and this is also angle 1, you got 70 degree. क्वेश्चन में आएगा prove that L is parallel to M। क्वेश्चन में क्या मिलेंगे बच्चों? prove that L parallel M. Correct. Now if you see these two angles are equal, okay, and their corresponding angles, और मैंने आपको बताया था when the corresponding angles are equal two lines are parallel. Is it clear? Okay, कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। एक मॉडल सम मैं आपको बता देता हूँ so that when you get into the exercise सारे सम को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आप कैसे बोलेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल, we call this as angle 2। उससे पहले बच्चों बोलेंगे L and M are lines and T is
दी ट्रांसवर्सल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कहाँ से पता चला बच्चों? डोंट से ऑल्टरनेट एंगल, यू हैव टू से गिवन, बिकॉज ये गिवन दिया है, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट वन स्टेप यू हैव टू राइट सिंस corresponding angles are equal, comma L parallel M। तो बच्चों स्टेप अच्छे से देख लीजिए, दिस इज द मॉडल स्टेप जो आपको हर क्वेश्चन में लिखना, आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यू विल से दैट L and M आर लाइन्स एंड T इज द ट्रांसवर्सल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। गिवन आपको लिखना है, आपको करस्पॉन्डिंग यहाँ पे नहीं लिखना है, गिवन लिखना है। सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल L पैरेलल M। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये नहीं लिख लीजिए इसको, ठीक है, बढ़िया से लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो डिस्कस करता हूँ सभी आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है बच्चों, और वो नोट्स को व्हाट्सएप कर दीजिए, करेक्ट। कोई भी डाउट है मेरे को कॉल करिए, एकदम फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब बताइए एंगल 1, तो सपोज आई से दैट दिस इज नॉट एंगल 1, दिस इज एंगल 1। नाउ एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए सबसे पहले बताइए क्या ये दो लाइन पैरेलल हैं? पैरेलल है? हाँ है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो हाउ विल यू राइट? टेल मी। L and M are lines and T is the transversal, same. Angle 1 equal to angle 2 given same. Here you will write since corresponding हटा के क्या लिखेंगे बच्चों? Alternate interior angles are equal, L parallel to M. That's all. Simple, right? चलिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, 1 यहाँ पे नहीं है, 1 comes here, not here, already came here, it is coming angle 1 equal to 110 degree. Now how will you prove it? Tell me, कैसे आप इसको प्रूव करोगे? बोलिए बच्चों, पहले बताइए कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है, क्योंकि इसको बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये दो एंगल को प्लस करके 180 आ रहा है, तो ये दो लाइन पैरेलल है। माइंड इट, हियर दिस टू एंगल्स विल नॉट बी इक्वल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल नॉट बी इक्वल, रादर देयर सम विल बी 180 डिग्री। ठीक है ना बच्चों? तो कैसे लिखेंगे बताइए? आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 110 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया? स्टेप कैसे लिखेंगे बोलिए? कम ऑन, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ कौन? सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ बोलिए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर supplementary, since interior angles on the same side of transversal are supplementary, comma L parallel M। तो स्टेप ऐसे करके चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों? सपोज नाउ दिस एंगल इज 2 विच इज 70 डिग्री। मैं एक ही समय सारा सब आपको बता रहा हूँ, 1 in all, ये देख लेंगे, सारा एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा। 110 डिग्री। नाउ व्हाट विल यू से? सिंस एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, L is parallel to M, correct? Okay, now suppose this angle is 170 degree. Now what will you say? Do you know that they are alternate exterior angles? So what will you say? Since alternate exterior angles are equal, two lines are parallel. तो ऐसे करके बच्चों दो लाइन को पैरेलल प्रूव कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, काइंडली राइट इट डाउन।
पॉज करके लिख दीजिए। नो नेक्स्ट इज, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, इन क्वेश्चन इट विल बी गिवन दैट L is parallel to M, okay, and this will be the transversal and this is the line, suppose A, B, C and D, and this is 70 degree, okay. You are supposed to find all the angles, angle A, angle B, angle C, मैं सब लिख दिया बच्चों, D, E, F और G, ताकि यू बिकम मास्टर, राइट। अब बताइए, L इज पैरेलल टू M, नॉट L, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन AB पैरेलल CD, ओके। टू फाइंड, मैंने क्वेश्चन ही बना दिया आपके लिए बच्चों, ऐसा पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन करे तो सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। नाउ टू फाइंड क्या है, A, B, C, D, E, F, G, ठीक है बच्चों। प्रूफ तो नहीं होगा, मैं इसको लिख दूंगा प्रोसीजर। अब बताओ बच्चों, एक एक करके बताइए। सबसे पहला, B and 70 are equal, they are vertically opposite angle, तो you will simply write B इक्वल टू 70 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो B निकल गया बच्चों। चलिए, तो ये जो A है मैं इसको लिख देता हूँ रेड पेन में, क्योंकि ये A जो है गिवन है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपने B निकाल लिया, कौन सा रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बताइए, आप 70 से A निकाल सकते हो, 70 से A निकाल सकते हो, कौन सा रूल, मैं लिखता नहीं हूँ, चलो आपको मैं बता देता हूँ, उसमें से आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है बच्चों। कौन सा रूल से निकलेंगे, आप निकलेंगे लीनियर पेयर से बच्चों, किससे, लीनियर पेयर। अब बताइए A से C कैसे मिलेगा आपको, A से C यू विल गेट बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए एक से एक निकलता जा रहा है, करेक्ट। अब बताइए बच्चों, 70 से ये D निकाल सकते हैं हम, D, बताइए, डोंट यू फील देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। सो वाई दे आर करस्पॉन्डिंग, बिकॉज द टू लाइन्स आर पैरेलल, सो यू नो दैट व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ से तो सब निकाल सकते हो, फ्रॉम 70 you will get E linear pair, from 70 you will get G vertically opposite angle, from 70 you will get G linear pair। देखिए बच्चों, D और G linear pair है because it is a straight line, okay, and this is a ray, so this is D and this is G, and the sum of these two angle will be 180 degree. Is it clear? Okay, so this is not the only method to do this, many methods are there। आप डायरेक्टली C से D निकाल सकते हो, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, B से F निकाल सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, A से E निकाल सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप बच्चों 70 से F निकाल सकते हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, A से G निकाल सकते हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कितना रास्ता है देखिए, बहुत सारा रास्ता है, इसीलिए चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाइए, तब आपको सारा काम करने आराम होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, तो मैं सारा टॉपिक को देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए। तो मेन सब मिला के एक ही क्रीम है ये पूरे टॉपिक का। ये 7-8 मिनट का जो वीडियो है इसको मैं 1 मिनट में चेंज करता हूँ, वो ये है, व्हेन, कम ऑन बोलिए मेरे साथ, व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल हैं, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स CA आर इक्वल, मैंने सिंबल डाल दिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ऑल्टरनेट शॉर्टकट में एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और बताइए बच्चों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यानी 5 उंगली है और 5 चीज़ हो जाता है, ठीक है बच्चों। और व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, व्हेन द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, व्हेन द
interior angles are supplementary, when the exterior angles on the same side are supplementary, then the two lines are parallel. अगर पैरेलल है तो ये सारा एंगल्स इक्वल होगा, अगर ये सारा एंगल इक्वल है तो पैरेलल होगा. ठीक है. तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर नहीं आया प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मेरे को कॉल करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए, जीनियस बनिए. बिकॉज जीनियस बनना और पढ़ाई में आगे बढ़ना ये मेहनत का काम नहीं है, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है और लॉजिक को यूज़ करना है. और मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं. ठीक है बच्चों. मेरा फ़ोन नंबर है 9933227796. ठीक है. एंड विद दिस आई एंड द वीडियो एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. राइट.